जिंदगी को रमजान बनाओ, आपके मौत ईद बन सकता है करके। जिंदगी को रमजान बनाओ, आपके मौत ईद बन सकता है करके। ಬಡವರ ಬಂಧು ದೀನದಲಿತರ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಉಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು.
ಬಂದಿದೆ. ಅದು ರಂಜಾನ್ ಇರ್ಲಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ಲಿ, ಉಗಾದಿ ಇರ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Respected Shantinagar MLA, Chairman PDA and ದೈವರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. So we are very blessed in Shantinagar to have such a great, humble leader and also brother. அற்றார் அடிபசி தீர்த்தல் அக்தொருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி. அற்புதமாக திருக்குறளும் சொல்லியிருக்கார். Highest form of charity is feeding poor. எல்லா ரிலிஜனும் இததான் சொல்லுது. ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவன் இருக்கின்றான். யாருக்கெல்லாம் முடியாதவர்கள் அவர்களுடைய பசியை தீர்த்தால் இறைவன் நேரடியாக வந்து நமக்கு அருள் புரிகின்றான். அந்த ஒரு அற்புதமான காரியத்தை நம்முடைய எம்எல்ஏ அவர்கள் ஒவ்வொரு பண்டிகை நாளிலும் ஈகை திருநாள் என்று கூட சொல்லுகின்றார்கள் ரம்ஜான். ஆகையினால் அந்த ஈகை என்பது பிறருடைய மனதை மற்றது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் கூட அது இன்னும் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற மனது. ஆனால் இந்த சேவை இவை செய்கின்றது ஒவ்வொரு மனதிலும் போதும் என்ற அந்த மனதை சாந்திநகர் வட்டாரத்தில் உள்ள மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், ಆನಂದಪಟ್ಟು கொண்டிருக்கின்றார்கள். ಇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ நமக்கு சந்தோஷ பாக்யா. மானிட பிறவியில் அங்கஹீனங்கள் இல்லாமல் மனுஷனாக பிறக்கணும்னு சொன்னாங்க நம்ம யோகமூர்த்தி சுவாமி. ரொம்ப விசேஷம் சார். எல்லா வேதிக்கை மேலும் மாத்தாடுவது அது ஒன்றே. பெரிய எம்எல்ஏ, பிடிஏ, பெரிய சாதனை படைச்சவங்க, 18 வருஷம். அதுக்கப்புறம் பிடிஏ சேர்மன், யாருமே பண்ணாத ஒரு நல்ல திருத்ததை எந்தெந்த இடத்துல என்ன நல்லா இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படிங்க பண்ணி நேர்மையா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனுஷன் அல்வா. இதுக்கெல்லாம் எச்சாகி அந்த மனுஷனை தான் ஏறக்குறைய 20 ஆண்டுகள் நம்மோட பயணிச்சுருக்கு. மாபெரும் அற்புதமான சேவை செய்த எம்எல்ஏ பதவி, அதனை தொடர்ந்து எத்தனையோ பதவிகளையும் வகித்து எண்ணற்ற செயல்களை செய்து நம்முடன் ஒன்றர கலந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான அந்த மாமனிதன் அவர்களும் அவர்கள் குடும்பத்தாரும் எல்லா நலனும் பெற்று இனிதே வாழ இறைவனை முதலில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎತ್ತಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಳ್ಸೋದು ನಾವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾರನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ सबका भी वो शांतिनगर में पूरे लोगों का, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सब लोगों का, तो ये एक नमूना है. ये हर जगह पे नहीं है ऐसा.
एक एक लोगों का एक एक तरफ रहते हैं, दूसरे ये सब साथ में है, तो इंशाअल्लाह इस इंसानियत को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। अभी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु अयालुल्लाह अहब्बुहुम इलल्लाहि मन अनफ़अहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की तारीफ के बाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद तो फरिश्ता कहता है कि सबसे पहले आप ही का नाम है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो माशाअल्लाह इसी का इजहार करने के लिए यहाँ हर साल खासकर रमजान के मुबारक महीने में, जो ये महीना हमदर्दी का महीना है, शाहरुल मुवासात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा इस्लाम तो ये कहता है इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के ऊपर भी हमें रहम करना है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिन नास, मन फिस समा, जो जमीन वालों पर रहम करेंगे अल्लाह उनके ऊपर आसमान वाला रहम करेगा। तो बहुत मुबारकबादी के काबिल है हमारे इस इलाके के एमएलए जनाब यानी हारिस साहब, हर मौके पर पूरे साल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर कर हर तबके को, हर मजहब वाले को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वाकईतन आपने सच कहा कि शांति नगर एक बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन नमूना है कि यहाँ माशाअल्लाह सब मिलकर रहते हैं। अल्लाह का करम है, यही चीज हमेशा अल्लाह बाकी रखे और हम सब के दिल में आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बाकी रहे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ एक तो एमएलए साहब को भी बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और स्टेज पर आए हुए इनको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस बेहतरीन मौके पर हम सबको अल्लाह ने यहाँ जमा फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ को बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को हजरत इंसान बनाया। अल्लाह ताला ने हम सब को सारी मखलूक़ात में सबसे अशरफ, सबसे बेहतर बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान में भी उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा फरमाया। इस पर मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह ताला का इस पर भी मैं बेहद शुक्र बजा लाता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक बेहतरीन रहनुमा, एक बेहतरीन कायद अल्लाह ने अता फरमाए, जिनकी सोच ही इंसानियत है। हर काम में इंसानियत को सामने रखते हैं और इंसानियत के नाते जो है, इंसानियत के हिसाब से ही जो है फैसला फरमाते हैं और तमाम मज़ाहिब को मानने वालों को एक साथ लेकर चलते हैं। ये अल्लाह ही का करम है, ये अल्लाह ही का फजल है कि ऐसे बेहतरीन रहनुमा और ऐसे बेहतरीन कायद एमएलए साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए अता किया है। इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि स्टेज पर सारे मज़ाहिब के मानने वाले, सारे मज़ाहिब के रहनुमा इस स्टेज पर मौजूद हैं और एक बेहतरीन पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और इंसानियत का ये पैगाम आम कर रहे हैं ताकि सबके अंदर इंसानियत आ जाए, सबके अंदर इत्तेहाद आ जाए, सबके अंदर मोहब्बत आ जाए, सबके अंदर इत्तेफाक आ जाए। और इस प्लेटफॉर्म से सब मुस्तहिक लोगों का, जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए राशन दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खैर की बात है। अल्लाह ताला ने हम सबको इसका हिस्सा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी दुनिया में मोहब्बत का, इत्तेहाद और इत्तेफाक का इसे जरिया बनाए और आखिरत में इसे नजात का और कामयाबी का अल्लाह ताला जरिया बनाए। और खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मजीद में फरमाया है वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया है, जो भी अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, उसके मुताबिक इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करे, जरूरतमंदों के तकाजों को पूरा करे, उनके घरों का ख्याल रखे, मिस्कीनों का ख्याल रखे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो पैगाम यानी खर्च करने का, देने का, मदद करने का जो अल्लाह ने हमें दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये चीज हर मजहब में ये चीज मौजूद है। हर मजहब के लोग ऐसे काम जो है करते हैं और जो है जो कुछ भी अल्लाह ने जिसे दिया होता है उसे जरूरतमंदों में हर मजहब में जो है खर्च करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसे जो है बाकी रखना चाहिए। ये एक पैगाम जो है इस प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और इस पैगाम को लेकर हम सबको जाने की तौफीक नसीब फरमाए, इस पैगाम को आम करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि अल्लाह ने हमें जो दिया है इसे अल्लाह की राह में खर्च करना है, जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का इस पर शुक्र भी बजा लाते रहना चाहिए कि अल्लाह ने एक अच्छा बेहतरीन माहौल अल्लाह ताला ने हम सबको अता किया। हमारे एमएलए साहब को अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में सेहत में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और तरक्कियात से और ऊंचे मनसब से अल्लाह तबारक व तआला हमारे एमएलए साहब को नवाजे कि इनके सरपरस्ती में इतने कारहाय नुमाया अंजाम हो रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम तर खिदमात को, तमाम तर कामों को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ कबूलियत से नवाजे। I sincerely thank the MLA Shri Harris for this opportunity. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ. ಈಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಿಯಮ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಲಭಿಸಿದೆ ಅವರ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಈ ಜನರು ಅವರವರ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಾವು ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಹಂದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ MLA ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆರೈಸಲಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಬಡತನದಿಂದ ಜನರು ಹೊರಬಂದು ಅವರು ಸಹ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಸಹಾಯತೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಪಿತನ ಸುತರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅವರವರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬೇಡುತ್ತಾ ಎಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.